Hello students, how are you? I think you all are fine, fit and healthy at home. Okay, and you are doing or you are studying well. Okay, with this hope, I am continuing my lesson. You know, I have started chapter 3. Its name is Two Stories About Flying, and second part we have started Black Aeroplane. It is written by Frederick Forsyth. So it is a very nice story. For some time we are just revising the story. What is the story, guys? The narrator was wanted to visit his native place, so that he was very excited to go there, and he was flying his old Dakota DS-088 aeroplane, and he wanted to visit England. So for that he had taken his flight from France. Okay, he himself is flying the plane, and from France he wanted to go to England. So he called in the Paris control center, and that lady spoke to him, and she told him that you, means the narrator, had to turn 12 degrees to west, then he would be in England. So he was very happy, and he come to know that enough fuel was there in his tank. Parallelly, the sky is very clear, and no, we can say, the difficulties would be there. So he was very happy, and he decided in his mind that I have to take my breakfast in England only, because I told you in my previous lecture that every state, every nation is having its specialty. So he was flying from France. He talked with the lady in Paris control. Now he moved towards England, and he decided that he wanted to spend the holiday with his family, and so that he moved with a very great excitement. And whenever he was flying towards the plane, in his plane, he just checked his compass, his map, and then had taken the turn of 12 degrees towards west, and he was towards the, we can say, England. But whenever he crossed 150 kilometers from Paris, okay, so the problem created in front of him. What the problem? That the sky, whenever he was before 150 kilometers, at that time the sky was very clear, but whenever he reached after 150, he saw that the black clouds covered the sky, and no, means we can say that he could not visualize anything in the sky. So he had only two options. First option is that he had to take the risk, and another option is that to return back to Paris. But he wanted to spend the holiday with his family. That is why he was very excited there, and so the narrator had taken the risk. Okay, so before he had taken the risk, he checked all his plane. Why? Because you know that his plane was very old, the fuel was very little, only up to England anyhow he would reach there. So he had checked all his fuel parallelly, his we can say that compass and map and all other things, okay, radio, all he checked, and had taken the we can say turn towards west. And whenever he had taken the west, he entered in the black sky, in the black clouds. As soon as he entered in the black clouds, no thing or nothing was visible to him. कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था. So करे तो क्या करे? So he tried his compass, but his compass stopped its functioning, stopped its working. उसकी compass ने काम करना बंद कर दिया. The needle was just moving round and round. So the compass stopped its function. Other instruments also be present in the aeroplane. They were also dead, means stopped their working. So he tried his radio. Whenever he spoken over the radio, he found that the radio was also dead. The radio was also not working there. So what to do? So one thought came in his mind that he was lost in the black clouds only. Otherwise, because he don't have any option. Now, as soon as he entered in the black clouds, he can't take the U-turn also. Clouds के अंदर एक बार चला गया तो U-turn कैसे लेगा? So one positive thing, or one, we can say that good thing happened there. He had seen one aeroplane
It was just flying next to his aeroplane, and the pilot was moving, means the pilot was waving his hands towards the writer or towards the narrator. Hearing this or seeing this, the narrator was very happy and comfortable because he was thinking that someone is there who is with me in the black clouds. So we could handle the situation. ये उसको सिंपैथी मिली क्योंकि जब उसको वो एरोप्लेन दिखा, इट वॉज अ ब्लैक एरोप्लेन विथ इनसफिशियंट लाइट्स, उसके लाइट्स भी बराबर पूरे सफिशियंट नहीं थे, तो भी उसने पायलट का फेस देखा। पायलट जो है वो उसके ऊपर हैंड वेव कर रहा था, तो उसको पता चला कि मेरे साथ कोई है, अभी कुछ भी हो जाए हम लोग सिचुएशन को तो क्रॉस कर ही लेंगे, अभी हमको देखना है। दिस इज द स्टोरी वी हैव बीन कंप्लीटेड इन प्रीवियस लेक्चर। नाउ द व्हाट द स्टोरी, अभी स्टोरी क्या है देखो। In the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see the another person, and he lifted one hand and waved. Follow me, he was saying, follow me. Actually, the narrator was not capable to hear the sound of the pilot, but he was just waving his hand and मेकिंग द, वी कैन से दैट, वो इशारे में कर रहा था कि चलो फॉलो मी, तो मुझे फॉलो कर, इस तरह से वो उसको बता रहा था। फिर ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, क्योंकि वो जो नेक्स्ट एरोप्लेन का पायलट था उसको पता था कि ये खो चुका है इसके अंदर, इसीलिए वो उसको हाथ से बता रहा था कि ही वाज वेइंग हिज हैंड एंड शोइंग द डायरेक्शन, फॉलो मी, और वो शायद हेल्प करने आया है, ऐसे नैरेटर ने अपने आप को मीन समझ लिया, एंड ही वाज जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग हिम, और वो ब्लाइंडली विदाउट एनी थिंकिंग, उसने खुद सोचा नहीं, उसके पीछे ही वो फॉलो कर रहा था। फिर क्या होता है देखो, he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. देखो उसको राइटर को हेल्प करने के लिए उसने क्या किया, जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, उसने उसका प्लेन नॉर्थ साइड से ले लिया, जिसकी वजह से नरेटर को इजी हो जाए उसको फॉलो अप करना, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट एक के पीछे एक प्लेन फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग थोड़ा इस साइड ऐसी पोजीशन में आ गए। ब्लैक एरोप्लेन इस साइड से था और नरेटर ऐसा था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, तुम लोग देखोगे यहाँ पे बुक में तो पॉसिबल नहीं होगा, तो भी वहाँ पे किस तरह से वो प्लेन का पीछे कर रहा था, यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में तुम लोग देख लेना। फिर आगे क्या होता है देखो, he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. Yes, narrator himself is comparing to or with obedient child. जैसे नहीं टीचर बोलती चलो पीछे आओ हमारे, तो तुम लोग बराबर टीचर के पीछे पीछे ही जाते हो, कहीं अपने पिकनिक जाते हैं तो, क्योंकि तुमको एक विश्वास होता है कि मेरे मैम या मेरे सर मुझे बराबर ही लेके जाएंगे। द सेम वे द नैरेटर वाज जस्ट फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन, वो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे ही जा रहा था, क्योंकि उसको कुछ रास्ता था ही नहीं, वो करता तो क्या करता, इसीलिए वो सीधा, वो जस्ट फॉलोइंग लाइक ओबीडियंट चाइल्ड, इसलिए उसने खुद को क्या बोला है, ओबीडियंट चाइल्ड। बच्चा जैसे अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के चलता है, उसको पता है मेरी मम्मी जो है आई एम विद सेफ साइड, मेरी मम्मी बराबर ही लेके जाएगी, तो इस तरह से वो एक छोटे बच्चे की तरह, एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो प्लेन का पीछा कर रहा था। एंड ही आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर। अभी वो जो डैकोटा आफ्टर हाफ एन आवर मीन्स देखो हाफ एन आवर उन लोगों ने जर्नी किया, हाफ एन आवर जर्नी करने के बाद राइटर को, नैरेटर को पता चला कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो अभी भी उसके साथ है, अभी वो उसके साथ में पीछा कर रहा है, एंड ही वाज जस्ट फॉलोइंग द एरोप्लेन, बट द नैरेटर हैड सीन और चेक्ड हिज ओल्ड फ्यूल टैंक, उसकी जो फ्यूल की टैंक थी उसने चेक की, उसके अंदर थोड़ा ही फ्यूल था। हार्डली द प्लेन विल फ्लाई 5 to 10 minutes, प्लेन कितना उड़ सकता था अभी 5 to 10 minutes, उससे ज़्यादा नहीं। उसने देख लिया, अभी देखते हैं क्या होता है, भगवान भरोसे, तो उसने वैसा ही किया। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, उसके मन में डर आ गया ना,
क्योंकि 5 और 10 मिनट ही प्लेन चलेगा, इतना ही फ्यूल था। अभी करे तो क्या करें, और वो एक्चुअली कौन सी जगह पे उसको कुछ पता ही नहीं है। सो आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड अगेन, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो टू द स्टॉर्म। और उतने ही समय में वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसने लैंडिंग करना शुरू किया। सो नाइस और वेरी लकी द नैरेटर वाज। उसने जो ब्लैक एरोप्लेन उसके राइटर के आगे चल रहा था, उसने लैंडिंग करना स्टार्ट किया। राइटर को हाश हुआ, हाश, क्योंकि उसके टाइम पे उसके प्लेन के अंदर फ्यूल ही नहीं था। तो उसको उसने जैसे ही देखा कि जो ब्लैक प्लेन है वो लैंडिंग कर रहा है, तो इसको भी करना था ना। सो ही वॉज वेरी हैप्पी विद दिस, ही गॉट अ पॉजिटिव होप इन हिज माइंड। उसके माइंड में एक हिम्मत आई कि चलो अच्छा है, आगे का एरोप्लेन अगर लैंडिंग कर रहा है तो मैं भी उसके पीछे करूंगा। ओके, फिर बाद में देखो, suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of the lights in front of me. It was a runway. और जैसे ही उसने लैंडिंग की उसने देखा कि क्लाउड्स में से वो बाहर आ चुका था और लाइट्स की 2 स्ट्रेट लाइन उसको दिखी। इट मीन्स दैट इट इज अ रनवे। उसको पता चला कि ये लैंडिंग करने की जगह है, मैं इजीली यहाँ पे लैंड कर सकता हूँ। फिर बाद में देखो, एन एयरपोर्ट, आई वाज सेफ एंड आफ्टरवर्ड्स ही कम टू नो दैट इट वाज द एयरपोर्ट्स रनवे एंड ही वाज वेरी सेफ नाउ। वो जो रनवे था वो एयरपोर्ट का था और अभी वो सेफ था क्योंकि उसने लैंडिंग कर चुका था, तो अभी फ्यूल की भी जरूरत नहीं थी, प्लेन अपने आप ही स्टॉप हो जाता। एंड आई टर्न टू लुक फॉर माय फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी। फिर बाद में जैसे ही उसने पीछे की साइड में देखा तो उसको पता चला, मीन्स उसको ऐसा लगा कि मेरे फ्रेंड को मैं गुड बाय करूँ या हैप्पी विश करूँ। तो उसने देखा और आकाश में भी देखा, द स्काई वाज एम्प्टी, नो वन वाज देयर इन द स्काई। आकाश में कोई भी नहीं था, स्काई भी अभी एम्प्टी हो गए, वो ब्लैक क्लाउड्स वैनिश्ड। वो जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो भी चले गए, स्काई में अभी कोई भी नहीं था, स्काई भी एम्प्टी हो गया। और स्पेशली व्हेनेवर ही वांटेड टू मीट हिज ओल्ड मींस ब्लैक एरोप्लेन्स फ्रेंड, नो वन वाज देयर। उसको ऐसा लगा कि चलो मेरे जो ब्लैक प्लेन का जो पायलट है उसको मैं थैंक्स बोल के आऊँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। ऑब्वियसली इट वाज अ वी कैन से दैट वेरी हार्श वी कैन से टाइम फॉर द नैरेटर। इसलिए वो जैसे ही वो प्लेन से बाहर निकला, पहले उसने सोचा कि मैं वो फ्रेंड को मिलके आता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। वो देखता क्या है, कोई नहीं है, टर्न हुआ तो कोई भी वहां पे नहीं है, आकाश में देखा तो आकाश में भी प्लेन नहीं है, तो अचानक से कहाँ चला गया प्लेन। फिर देखो यहाँ पे क्लाइमैक्स है कि प्लेन कहाँ चला गया, वहां तो कोई भी नहीं है। देन suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway and the airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. राइटर ने देखा कि रनवे दिख रहा है, एयरपोर्ट पे वो पहुंच चुका है, नो वन वाज देयर, और जो ब्लैक एरोप्लेन है उसका कहीं पे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली वो कहाँ पे उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पहुंचा हुआ है। मीन्स व्हाट कि क्या हो सकता है, वही तुमको सोचना है क्या हो सकता है। हमारे साथ देखो स्टूडेंट, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसी घटनाएं होती है ना कि उसका ऑप्शन हमारे पास कभी कुछ होता नहीं है। जैसे अचानक से देख लो कि तुम लोग कोई मुसीबत में फंसे हो और अचानक से कोई बंदे का तुमको बचाने आ जाना है। तुमको मैं एक ट्रू इंसिडेंट यहाँ पे बताती हूँ, ट्रू, ये कोई पिक्चर की नहीं है और ये मेरे अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, मेरे अंकल के साथ ही हुआ। एक्चुअली महाराष्ट्र से मेरे अंकल मेरे यहाँ पे गुजरात में आए थे, उनका खुद का व्हीकल था और यहाँ पे वो एक दिन रहने के बाद वो वापस जब जा रहे थे तो तुमको पता है अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस वे है, ओके, एक्सप्रेस वे से वो जा रहे थे, अचानक से उनकी गाड़ी का लेफ्ट साइड का जो टायर है ना वो फट गया, तो उनकी गाड़ी स्लो हो गई। मिड वे से है, अभी एक्सप्रेस वे से तुमको पता है कि कितना फास्ट होता है, वहाँ पे गाड़ियाँ कितनी फास्ट जाती है अपने, और वो लोग मीन्स अनफॉर्चुनेटली वो राइट साइड में थे, ट्रैक में डिवाइडर के पास। लेफ्ट में होते तो कोई बात नहीं, वो अपनी इजीली गाड़ी लेफ्ट में ले लेते, वो राइट साइड में थे और वो राइट साइड में थे और लेफ्ट साइड का जो टायर है वो बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी में से आवाज आने लगी और गाड़ी स्लो हो गई। तो भी इन लोगों को पता नहीं चला कि गाड़ी का टायर फटा है, थोड़ी गाड़ी ऐसे ऐसे हुई, उसने कंट्रोल कर ली जो भी चला रहा था वो। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद गाड़ी ने चलना स्टॉप कर दिया।
और इनको पता चला कि इनकी गाड़ी का टायर फट चुका है। तो अभी उनको लेफ्ट लेना था और इतना इजी नहीं है एक्सप्रेस वे पे लेफ्ट लेना, क्योंकि इतनी फास्ट गाड़ियाँ जाती है, शायद तुम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। उन्होंने एनी हाउ वहाँ पे लेफ्ट में गाड़ी ले ली, वहाँ पे गाड़ी लगा ली, टायर फटा हुआ है। महाराष्ट्र के वो लोग हैं, गुजरात का उनको कुछ आइडिया नहीं है, करे तो क्या करें। उन्होंने हेल्प के लिए दूसरे कार से हेल्प मांगी, दूसरे गाड़ियों से उन्होंने हेल्प मांगी कि मीन्स वो हेल्प मांग रहे थे, पर कोई रुकता है नहीं, कोई नहीं रुकता, एक भी कार नहीं रुकी। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई भी नहीं रुक रहा। फिर वो लोग हमें कॉल करने वाले थे कि आप वहाँ पे आओ, बराबर। तो अचानक से वहाँ पे वो छोटी सी गाड़ी होती है, जैसे नहीं उसमें कैरियर होता है, जैसे उसमें सामान जो है लगेज सब लेके जाते हैं, ट्रक से थोड़ी छोटी होती है, वो गाड़ी दिखी। इन्होंने उसको हाथ किया तो वो गाड़ी रुकी। उसमें से पहले एक पर्सन बाहर निकला, उसने बोला कि क्या हुआ है आपकी गाड़ी को। अभी वो गुजराती था, ये लोग मराठी थे, पर हिंदी में बात कर रहे थे। उसने बोला क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी का टायर फट चुका है, तो अभी हम लोगों को ये रिपेयरिंग करना भी आता नहीं है, टायर बदलना। स्टेपनी तो पड़ी है गाड़ी में, पर लगाए तो कैसे लगाए। तो फिर बाद में उसने बोला कोई बात नहीं। तो उसके साथ जो पर्सन था ड्राइवर, वो भी नीचे उतरा और उनके पास देखो, अभी इसको बोलते हैं नसीब, लक वी कैन कॉल इट। उसके पास सारा सामान था, जैक बदलने का, जो टायर बदलने के लिए जैक लगता है वो उनके पास था, बराबर। तो उन्होंने क्या किया, और जो सामान लगता है स्क्रू ड्राइवर और जो भी व्हाटएवर, वो सारे इंस्ट्रूमेंट उन लोगों के पास थे। उन दोनों ने टायर खोलने की कोशिश की, टायर उन्होंने खोला, स्टेपनी को देखा तो स्टेपनी में हवा ही नहीं है, क्योंकि सालों से स्टेपनी कार के अंदर थी, इनको थोड़ी पता हमारे साथ ऐसा होगा। फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने वो स्टेयरिंग के नीचे लगाया, उसमें से टायर के अंदर हवा भरी। बोलो, वो हवा भरने के बाद उन्होंने वो टायर निकाल के वो स्टेपनी वहाँ पे लगा दी और इनकी गाड़ी अच्छी हो गई। इसको बोलते हैं लक। अभी मेरे अंकल ने उनको पूछा कि लीजिए पैसे दिए उनको कुछ, तो उन्होंने बोला नहीं सर, हम लोग ऐसे पैसे वैसे नहीं लेते हैं, हम लोग तो सिर्फ हेल्प करते हैं, दुनिया का अच्छा काम करते हैं बस। अब ये कौन हो सकता है, भगवान का ही रूप हुआ ना। मैंने तुमको ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि ये फैक्ट है, 2 दिन पहले ही हुआ है। उनके साथ टायर का फटना, तुमको पता है टायर फटता है तो गाड़ी उल्टी हो जाती है पूरी, क्योंकि स्पीड ही इतना होता है, 100 से ऊपर तो स्पीड होता है गाड़ी का। और उनकी गाड़ी को ऐसा नहीं हुआ, उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाना, अचानक से उन लोगों का मिलना, उनके गाड़ी में सारे इंस्ट्रूमेंट्स होना, ओके। नहीं तो हवा भरना, हम लोग को स्पेशल हवा भरने के लिए पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है, पर उनके पास कुछ नहीं था वैसा। एक्सप्रेस वे पे दूर दूर पेट्रोल पंप होते हैं, तो उनका वहाँ पे मिलना, उसको वो क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग के नीचे उसने गाड़ी को रेस करने का बोला, जिसकी वजह से टायर के अंदर हवा भरना। मैजिक ही हुआ ना, मिरेकल, नॉट मैजिक, उसको हम लोग मिरेकल बोलते हैं। वैसा ही कुछ मिरेकल ये राइटर के साथ हुआ। मैंने तुमको ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि सेम थिंग ऐसा होता है, ये मुझे तुमको बताना चाहिए। सिर्फ ये जो ये फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने जो स्टोरी लिखी, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ऐसे होते हैं। तुम लोगों के साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे कि अचानक से कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारी हेल्प करके चला जाता है, ओके। वो इंसान ही होता है, पर उसको भेजने वाला गॉड होता है। समटाइम्स गॉड विल बी देयर, कभी कभी भगवान भी हमारी मदद करने आते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही हुआ। देखते हैं चैप्टर की ओर मुड़ते हैं। फिर क्या होता है देखो, द नैरेटर कम टू नो दैट द ब्लैक एरोप्लेन वाज नॉट प्रेजेंट देयर, पैरेलली द पायलट वाज आल्सो नॉट देयर, वो भी वहां पे नहीं था। फिर क्या होगा देखो, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control tower. I went and asked where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. जब उसको वो ब्लैक एरोप्लेन भी नहीं दिखा, उसका पायलट भी नहीं देखा, so he decided to ask to the control room. उसने सोचा कि मैं कंट्रोल रूम में जाता हूँ, वहाँ पे उनको पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे ब्लैक एरोप्लेन और उसका जो पायलट है उनको थैंक्स बोलना है, तो आप मुझे कैसे भी करके उनसे बातचीत रेडियो से करवा दीजिए। ऐसे वो कंट्रोल रूम की ओर गया और उसने उनको पूछा। तो अभी देखो उन कंट्रोल रूम वालों ने क्या, वो जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे, उन्होंने क्या आंसर दिया। वही एक क्लाइमैक्स है स्टोरी का, जो मैंने तुमको अभी मेरे अंकल की स्टोरी बताई, सेम वैसा ही क्लाइमैक्स है। देखो, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो जो लेडी वहाँ पे बैठी थी कंट्रोल रूम में, उसने राइटर की ओर देखा,
एकदम अलग से, अनयूजुअल, स्ट्रेंजली मीन्स अचानक, और वो हंसने लगी। जब क्या क्यों हंसने लगी? क्योंकि राइटर ने क्या पूछा, नैरेटर ने ऐसे पूछा कि यहाँ से कोई प्लेन गया है, उसको अगर गया है तो मुझे उनको थैंक्स बोलना है। वंस द लेडी हर्ड दैट स्पीकिंग, जैसे उसने वो टॉकिंग सुना, वो स्ट्रेंजली देखने लगी एंड शी लाफ्ड, और हंसने लगी। फिर वो क्या बोलती है, देखो, अनदर एरोप्लेन up there in this storm, no other aeroplanes were flying tonight, yours was the only one I could see on the radar। वो पता है रडार होता है, सिग्नल वो लोग कॉट्स करते हैं उसके ऊपर। वो लेडी बोल रही थी कि दूसरा एरोप्लेन पॉसिबल ही नहीं, आपका ही एरोप्लेन आज रात स्काई के अंदर उड़ रहा था और रडार में मुझे सिर्फ आपका ही प्लेन दिख रहा था, दूसरा कोई भी प्लेन वहां पे मौजूद था ही नहीं, ऐसा उसने बोला। सो हियरिंग दिस द नैरेटर वाज शॉक्ड। जैसे उसने सुना, उसको धक्का लगा कि फिर वो एरोप्लेन कौन था, वो इंसान कौन था मैंने जिसको देखा, और वो प्लेन ने मुझे नीचे तक लैंडिंग करवाई, वो प्लेन कहाँ गया? क्योंकि रडार में तो उसका ही, नैरेटर का ही प्लेन दिख रहा था। ये सुनने के बाद उसको शॉक हुआ। फिर वो क्या सोचता है, देखो, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक, हु वाज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। उसके मन में इतने सारे क्वेश्चंस आए। जैसे देखो, हमारे साथ कोई हेल्प करके जाता है तो हमारे माइंड में आता है कि वो पर्सन कहाँ से आया, उसको कैसे पता चला कि मेरे साथ ये होने वाला है, उसने मेरी कैसे हेल्प की। ऐसे लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन आवर माइंड। द सेम क्वेश्चन केम इन द माइंड ऑफ द नैरेटर। नैरेटर के माइंड में भी इतने सारे क्वेश्चंस आए। उसने बोला कि वो पर्सन कौन था जिसने मुझे हेल्प की, और वो पर्सन कौन था जो मेरे पास मीन्स कंपास, रेडियो, किसी के यूज किए बिना उसने मुझे लैंडिंग करवाई, और वो पर्सन कौन था जिसके प्लेन में इनफ लाइट भी नहीं थे तो भी वो स्टॉर्म में से निकल के मेरी उसने हेल्प की। ऐसे सारे क्वेश्चन राइटर के मन में आए। एंड फाइनली ये चैप्टर का एंड है स्टूडेंट्स। यहाँ पे तुम्हारा जो चैप्टर है, एक मिनट में लिख लेते, यस, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर एंड हो रहा है। देखो मैं बोलती हूँ फिर से कि राइटर के माइंड में क्या क्वेश्चन आते हैं कि हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक, एंड हु वाज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। वो एरोप्लेन में ना लाइट्स थी, खुद राइटर के प्लेन में ना कंपास थी, ना रेडियो था, कुछ भी नहीं था, ना फ्यूल था, तो भी ही लैंडेड सेफली ओवर एट द एयरपोर्ट के ऊपर वो बहुत इजीली आ गया। तो कौन होगा वो? योगेश, क्योंकि एनसीईआरटी के चैप्टर ऐसे ही होते हैं, तुम लोगों को उसके बारे में सोचना पड़ता है कि क्या होगा। ही इज, वी कैन से दैट सम डिवाइन पावर। वो भगवान ही थे कि जिन्होंने नैरेटर को बहुत ही अच्छी तरह से सेफली लैंडेड किया और उनको सेफली इंग्लैंड पहुंचाया। अभी यहाँ पे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, पर इसका मोरल क्या हुआ? देखो, हमारे साथ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होती रहती है, तुम्हारे साथ भी हुई होगी, पर हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। यहाँ पे भी वही है कि वो इतने मुसीबत में फंसा था, बट एक डिजायर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजायर दैट वी आर हैविंग, उसके एक मन में एक डिजायर थी, क्या कि मुझे मेरे घर आज ही पहुंचना है, मेरे घर पे मुझे मेरे फैमिली के साथ नाश्ता करना है, वो उसकी विश थी। और जो फुलफिल करने के लिए गॉड खुद उसके साथ आए। जैसे तुमने शाहरुख खान का मूवी देखा होगा, ओम शांति ओम, उसके अंदर भी है ना कि शिद्दत से तुम अगर किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरे करने की कोशिश करती है। दैट इज द फैक्ट। तुम्हारे माइंड से, दिल से अगर तुम लोग कोई भी चीज चाहते हो, ये पूरा नेचर तुमको हेल्प करता है। एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्स। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, कुछ भी तुम लोग बोल सकते हो। इसीलिए हमेशा तुम लोग किसी को भी मिलते हो, वो लोग एक ही बात पे एम्फेसिस करते हैं, क्या? थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है, पर हम लोगों को पॉजिटिवली सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छी घटनाएं बनती हैं। तो आई होप तुमको चैप्टर समझ में आया होगा बेटा। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी डाउट सॉल्विंग लेक्चर में मुझे पता चले कि बच्चों को बहुत सारे डाउट है कि क्या लिखे। अभी यहाँ पे दिया हुआ है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट भी दिया हुआ है और थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज भी दिया है। तो तुमको क्या करने का, देखो, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। एक बार फिर से बोलती हूँ, तुम लोगों को थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है, अगर कैंप में दिए हैं
पढ़ के रखना है, लिखने की जरूरत नहीं। उसको एक बार रीड कर लो तो भी सपोज एग्जाम में आता है तो तुम लोग लिख पाओगे। गॉट इट गाइस? तो यहाँ पे मेरा लेक्चर जो है मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।